आज हम लोगों को पढ़ना है कोरोना डिस्चार्ज। दिस इज कोरोना डिस्चार्ज। इसको पूरा समझने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट है, लेट अस सपोज वी आर हैविंग टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई। लेट अस सपोज वी आर हैविंग one sphere of radius, let us suppose it has capital R radius, and we are having another sphere of small size, identical in shape but small in size, has smaller radius R. And if we have given some charge to both, let us suppose some charge has given to, we have given Q1 charge to this surface and Q2 charge to this surface. As we have given the charge will be distributed uniformly as it is a conductor. So why it will be distributed? Because if we have given a single charge, it will be here, but when we will give a next charge, next similar charge, that will repel this positive charge, and so the next charge will be here. And if we have given some charge, they will repel themselves and will try to remain as far as possible. So we have given some charge to it and it has been charged like this. Okay, similarly, if we have given charge to the next sphere, so it will be same charged. Let us suppose Q2 charge has been given to the sphere. So now the both sphere are charged with different charges. It has radius R and that is having radius small r. So the surface area of larger sphere will be 4 pi r square, while this has 4 pi r square. Okay, if we want to calculate the charge density or charge per unit area, that is called sigma, this will be Q1 divided by 4 pi r square, and it will be Q2 divided by 4 pi r square. As the charge has been distributed uniformly over the surface, so these two are, let us suppose this is sigma 1 and this is sigma 2. Now what we are doing, we are connecting these two spheres by a rod or a conductor. Let us suppose a conductor is kept in contact between the rods. If we have connected these by a conducting rod, there will be transfer of charge among the spheres and there will be an equilibrium. मैंने पहले भी बताया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या कहीं भी जहाँ तक सेम वायर है, सेम पोटेंशियल होगा. सो यहाँ का इस बॉडी का पोटेंशियल और इस बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. सो वी कैन राइट the potential of sphere 1 equal to potential of sphere 2. Okay, so note down. Our if we have to find the potential of the spheres, एक स्पेयर है, सपोज करो एक स्पेयर है, इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज q दिया गया है, तो इसका अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल होता है, so potential equal to constant c charge q divided by r. तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल R है और we can write here c is 1 by 4 pi epsilon naught, charge is q divided by capital R. This is the potential of this sphere. And what about this? Say this is VA and VB will be equal to, similarly it will be 1 by 4 pi epsilon naught charge Q2 divided by
small r. Here it is q1, it is q2. Okay, but as both are interconnected by a conducting rod, this is a conducting rod, so we can write potential of sphere A equal to potential of sphere B, and this will be q1 by 4 pi epsilon naught r1 equal to q2 divided by 4 pi epsilon naught r2. These two spheres are at same potential, or you can say equipotential. Okay, so we are doing something to favor us. This is r1, but in case of charge density we need 4 pi r square. Okay, so this can be written as q1 divided by 4 pi r1 square into r1 into epsilon. So epsilon naught is in both cases, so it can be cancelled. Okay, this is equal to q2 divided by 4 pi, this is a small r, 4 pi r square into smaller r, and this quantity is known as sigma, charge density. So we can write over here, this is sigma 1 for the first charge, sigma 1 r1 equal to sigma 2 small r. Okay, this is very important result, and we can write here, this is sigma 1 charge density of first sphere divided by, okay, make it in this way, sigma 1 into r1 equal to sigma 2 into small r. So if we need to calculate sigma 1, this will be sigma 2 by capital R1 into small r. So तो आपने देखा सिग्मा 1 इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू स्मॉल आर. इन दोनों केसेस में इसका चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 लिया है और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2. तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 विल बी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. क्लियरली small r divided by capital R, this is a small, this is large, so it will be a fraction, it will be less than 1, so we can write is less than 1. फिर से समझो, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये छोटा ये बड़ा है. छोटी क्वांटिटी में बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, तो फ्रैक्शन को लेस देन 1 लिख सकते हैं. अब इसको मिला दो, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज लेस देन 1 एंड दैट इम्प्लाइज सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2. अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहाँ आ रहा है ये समझना है कि सिग्मा 1 इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस एंड सिग्मा 2 इज चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस. ओके, मतलब कि जो स्फीयर स्मॉल साइज का होगा उस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जो बड़े साइज का है उस पे चार्ज डेंसिटी कम होगा. नहीं समझ में आया? इसका क्या मीनिंग निकलता है मैं अभी बताता हूँ, आप एक बार फिर से समझो. ये इस तरह का जो शेप है इसको मैं हटा करके और मैं एक दूसरा बना रहा हूँ. सपोज करो एक ऐसा कंडक्टर है जिसका शेप रेगुलर नहीं है, वो स्फेरिकल नहीं है, वो लेटर सपोज इट इज इन दिस शेप. ओके, कुछ ऐसा है और मैं इसको थोड़ा सा और भी अच्छा बना देता हूँ. लेटर सपोज इस तरह का है. वी हैव गिवन सम चार्ज. हम जैसे ही चार्ज देंगे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होगा कि नहीं? जिनको लगता है वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो गलत है.
अभी जो हमने लास्ट में देखा, क्या जो एरिया छोटा है वहाँ का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जो एरिया बड़ा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। अब मतलब इसका ये आता है कि अगर इधर इतने सारे चार्ज हैं तो ये रेडियस छोटा है ना, सो देयर विल बी मोर चार्जेस ओवर हियर। जो एरिया स्मॉलर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा और ये वाले जोन में थोड़ा कम चार्ज होगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब इस पॉइंट पे आ जाता है, अगर ये पिन पॉइंटेड है तो यहाँ का एरिया क्या होगा, और भी कम होगा, और भी एरिया कम होगा। तो जब एरिया कम होगा तो यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत हाई होगा, ये जोन बहुत ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा। क्यों? बिकॉज सेम पोटेंशियल थ्रू आउट मेंटेन करना है। सेम पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए उसको जो पॉइंटेड एरिया होगा, जो पिन पॉइंट जैसा जहाँ पे किंक होगा, किंक मीन्स देयर इज अ सडन चेंज, दिस इज कॉल्ड किंक। इस जोन में चार्ज का डिपोजिशन, इस जगह पे चार्ज ज़्यादा होगा और वो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब कि अगर एक कंडक्टर है थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, तो जो शेप में चार्ज जिसका रेडियस कम बनता है, जो स्मॉल है, वहाँ पे चार्ज का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, बाकी जगह पे चार्ज कम होगा। और इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इसका क्या रिपरकशन हो सकता है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा चार्ज जमा है। तो जिस जगह पे चार्ज, अगर यहाँ पे चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस जोन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इस जोन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। बट आप माइंड करो कि यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत हाई है, तो इस आसपास का जोन में जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स है, उसके आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। हाँ, तो जो एयर का एटम्स है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंडक्टर। और चूंकि यहाँ पे फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो ट्राई करेगा कि हम कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन स्नैच करें, चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस आसपास में अगर सपोज करो ऑक्सीजन एटम है या वाटर का एटम है या कुछ भी ऐसा है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है, मॉइस्चर है या कुछ ऐसा है, इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चलाएगा और स्पार्क करेगा, ये पॉजिटिव को खत्म करेगा। ये अब जो बीच का एयर था, बीच में जो एयर मीडियम था, दैट वाज बिहेविंग एज अ नॉन कंडक्टर, बट इन दिस केस इट माइट बी दैट विल बिहेव एज अ कंडक्टर। This process is called corona discharge. Discharging of potential through this leakage is called discharge, corona discharge। और ये होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कंडक्टर्स जहाँ भी होते हैं उसका जो छोर होता है, जो एंड पोजीशन होता है, अगर वायर है, सपोज करो पतला वायर है, तो उसमें ऐसा वायर जैसा निकला रहेगा, तो वहाँ पे डिस्चार्ज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और वो उनके बीच का जो मीडियम होता है वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लीकेज होना स्टार्ट कर जाता है, वहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। आप हाई वोल्टेज वाला जो टावर रहेगा, उस टावर पे जहाँ कंडक्टर बंधा रहता है, वहाँ वायर में बंधा रहता है, कोई छोर निकला हुआ रहेगा, वहाँ से एयर में ऐसा इलेक्ट्रॉन्स जंप करता रहता है, मतलब वहाँ से चार्ज रिलीज होता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इसका एक और भी सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, आप कार या बाइक जानते हो ना, बाइक में एक कार्बोरेटर होता है, उसमें क्या होता है, ये इस तरह का एक डिवाइस होता है, मैं बता दे रहा हूँ, आप शायद आपने देखा होगा इस तरह से, और यहाँ पे एक कंडक्टर के लिए कनेक्टर लगा रहता है, इस साइड में इस तरह का ऐसा बना रहता है।
एक जगह पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच का गैप बहुत स्मॉल होता है। जैसे आप किक मारते हैं स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज आता है और ये जगह पे चूंकि शार्प एज बना रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज होता है और वो स्पार्क करता है। इसी स्पार्क को यूज करके बाइक को स्टार्ट किया जाता है। सिलेंडर में जैसे एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसमें स्पार्क दिया जाता है, इसी कंसेप्ट को यूज करके वहाँ भी इसी तरह का फिनोमिनन यूज होता है। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है, क्लियर हुआ? इट इज द प्रोसेस इन विच लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरी हाई इनपुट वोल्टेज थ्रू अ स्मॉल सरफेसेस। ऐसा सरफेस जहां बहुत स्मॉल हो। अगर ये अब यहाँ से कोरोना डिस्चार्ज नहीं हो सकता है क्या? इस जगह से बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये सरफेस एरिया ज़्यादा है। हम चार्ज देंगे तो उसके अनुसार वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे किसी एक जगह कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा, चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होगा और सब जगह एक जैसा फील्ड यूनिफॉर्म करेगा। बट यहाँ पे बहुत इजी आसान है, यहाँ से फिर बहुत ही आसानी से लीकेज हो सकता है और चार्ज यहाँ से एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। सो नोट डाउन प्लीज।